Good morning, students. Today we are going to discuss a new chapter, Force and Law of Motion. Force. It is an external effort in the form of pushing, pulling, stretching, compressing, hitting, kicking, etc., which may move a body at rest. Which may move a body at rest. When a body is at rest, which can be moved with help of a force. Okay, push force या pull force या stop a moving body. If a body is in motion, you can use the force to stop it. या change the speed of body, you can accelerate its speed या you can retard its speed. आप स्पीड को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो by using a force. या you can change the direction of moving body. If a body move in straight line, you can change its direction from straight line. You can change it, okay, left to right, left या right side. So and you can also change the shape and size of any body, okay, by applying force. So force, this is the force. Okay, there are two type of forces. दो तरह के forces हैं, balance force and unbalanced force. Many agent of forces may be like muscular force या magnetic force या you can say electrostatic force. हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं. Balance force and unbalanced force. First one is balance force. Balance force. Okay. What is the balance force? Question is raised here. What is balance force? So if the resultant of all the forces means more than two forces या more than one forces. So if the resultant of all the forces acting on a body is जीरो, रिजल्टेंट अगर जीरो होता है दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस का, तो ऐसे फोर्स को क्या कहोगे? आप कहोगे बैलेंस फोर्स. द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस. ओके, सो द बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, मोशन में नहीं ले सकते. या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ बॉडी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन यू कैन नॉट स्टॉप इट या एक्सेलरेट इट्स बॉडी, एज वेल एज यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. So balance force cannot change the state of rest, cannot change the state of uniform motion, as well as it cannot change the direction of motion. However, balance force can change the shape and size of an object. Okay, so for example, suppose this is a body. सपोज करिए ये कोई बॉडी है. ओके, बॉडी ए है एंड यू अप्लाई टू फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर फोर्स इज दिस डायरेक्शन. बोथ फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड. मान लीजिए इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है. ओके, 5 न्यूटन. सो बोथ फोर्सेस applied on object A is of 5 Newton. Magnitude is same, 5 Newton in left hand side and 5 Newton in right hand side. Then what will happen? There is no net movement of object A. Suppose object A is in rest, so there is no movement of object. Okay, so balance force, these two forces act in right hand side as well as left hand side of object A is बैलेंस फोर्स. ये 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और इधर लग रहा है, दोनों बैलेंस फोर्स के एग्जांपल हैं. बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी. ओके, सिमिलरली देखिए एक एग्जांपल है इन टग ऑफ वार, रस्साकशी या रोप पुलिंग. इफ टू टीम, सपोज करिए टीम ए एंड टीम बी हैव 5 स्टूडेंट एंड बोथ अप्लाई सेम 100 suppose 100 Newton force is applied by team A and 100 Newton force is applied by team B. Then what will happen? There will be no net movement in rope. Okay, दोनों में कोई मूवमेंट नहीं होगा. तो
both forces applied by 5 student in left hand side and right hand side of the rope will apply same amount of 5 Newton force, but these forces are opposite in direction. That is why these two forces are balanced force. Okay. Similarly, if we hold a suitcase steady at a height, सपोज करिए हम एक सूटकेस को होल्ड करके रखे हैं, ठीक है, तो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊंचा, तो क्या होगा इस केस में? सपोज दिस इज अ सूटकेस, ओके, एंड वी होल्ड, या सपोज करिए दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड, एक हम यहाँ पर दो फोर्स लग रहा है, दिस इज द डाउनवर्ड फोर्स वर्टिकली एंड दिस इज द अपवर्ड फोर्स. दिस अपवर्ड फोर्स इज muscular force applied by we people, muscular force, and this downward force is force under gravity. It is m and g, मतलब mass multiplied by gravitational force. ये this is the gravitational force, it is in downward. सपोज करिए ये 10 न्यूटन लग रहा हो और ये भी हमको 10 न्यूटन बैलेंस करने के लिए अपने मस्कुलर फोर्स लगाने पड़ेंगे 10 न्यूटन. Okay, so both forces have same magnitude, that is 10 Newton, and 10 Newton upward by our hand and 10 Newton downward by the weight of this suitcase. Okay, so these two forces have same magnitude but having different opposite direction, opposite direction. That is why there will be no movement in सूटकेस. सूटकेस न तो नीचे गिरेगा न तो ऊपर जाएगा. सो दिस टू फोर्सेस, मस्कुलर फोर्स अप्लाइड बाय वी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय ग्रेविटी डाउनवर्ड, बोथ फोर्सेस आर बैलेंस फोर्स. ओके, अब आपको ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दोनों फोर्स को दिखाया गया है, बैलेंस फोर्स एंड this is the also balance force, this is also balance force, this is the object. Okay, next, unbalanced force. Now unbalanced force is what? If the resultant of the forces acting on a body is not zero. अगर resultant, बहुत सारे फोर्स एक बॉडी पे लग रहे हैं और उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है, the forces are called unbalanced force. Okay, and these forces can change the state of motion, या can change the state of, it can change the state of motion and state of rest, it can also change the direction of motion, it can also change the shape and size of object. Generally we use unbalanced force to change the position of any body which is in rest, या speed of any body which is in motion, या direction of any body, we can change also change the shape and size of body. यही फोर्स यूज जनरली होता है, अनबैलेंस फोर्स. ओके, अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज द पोजिशन ऑफ मोशन of any object and shape and size also. Okay, so to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. However, if this unbalanced force removed completely, the object would continue to move. Okay, object would continue to move. Okay, there is no need to another forces. Okay, अब देखिए अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल. सपोज ड्यूरिंग टग ऑफ वार व्हेन वन टीम रिलीज द फोर्स. सपोज करिए टग ऑफ वार में मान लीजिए ये रस्साकसी वाला टग ऑफ वार है और ये रोप है. मान लीजिए एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये बी टीम है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है. ओके, और मान लीजिए ये फोर्स 0 हो जाए और ये फोर्स 5 न्यूटन का है, तो व्हाट विल हैपन? दिस फोर्स विल बी अनबैलेंस फोर्स एंड ड्यू टू दिस फोर्स टीम बी विल फॉल बैकवर्ड. ये टीम बी जो है वो इधर मूव कर जाएगा क्योंकि ये फोर्स इसका 0 हो चुका है. टीम ए का फोर्स 0 हो गया है. अगर टीम फोर्स अपना हटा लेगा तो बी वाले पीछे गिर जाएंगे, बिकॉज ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ motion of that team. Okay, so this is the example of
अनबैलेंस फोर्स. नेक्स्ट वन एग्जांपल, इफ वी होल्ड अ सूटकेस. सपोज करिए हमने सूटकेस का भी एग्जांपल दिया था. सपोज दिस इज द सूटकेस, ओके, एंड इफ this is mg, force applied by gravity, and force applied by v, okay, muscular force. So if we if muscular force will be zero, अगर muscular force को जीरो कर दें तो क्या होगा, mg ही होगा, और mg के कारण मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ ऑपरेट करेगा, और मस्कुलर फोर्स छोड़ देंगे तो हम क्या होगा, सूटकेस नीचे गिर जाएगा. दैट इज वाई mg इज नाउ एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस फोर्स, ओके, ड्यू टू विच सूटकेस मूव डाउनवर्ड. ओके, नेक्स्ट देखिए, या गैलीलियो एक्चुअली गैलीलियो ने एक प्रैक्टिकल किया था जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के लिए बड़ा हेल्पफुल रहा. ओके, गैलीलियो मेड एन ऑब्जर्वेशन. व्हाट ही ऑब्जर्व दैट व्हेन ए स्मॉल मार्बल बॉल रोल डाउन एन आइडियल इंक्लाइन एंड फ्रिक्शनल प्लेन, आइडियल इंक्लाइन फ्रिक्शनल प्लेन. ओके, तो ये देखिए ये किस तरह का प्रैक्टिकल है, यहाँ हम दूसरे पेज पर देखेंगे. हियर गैलीलियो टुक टू प्लेन, सपोज करिए ये प्लेन ए है और ये प्लेन बी है. ओके, टुक टू प्लेन एंड दिस इंक्लाइंड प्लेन हैव विदाउट फ्रिक्शन, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इनके बीच में कोई फ्रिक्शन, ये दिस इज आइडियल प्लेन हैविंग विदाउट फ्रिक्शन, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा. ही रोल डाउन द बॉल एट हाइट h, दिस इज द हाइट of inclination, okay, and this is the angle of inclination of suppose left side inclined plane, and this is the angle of inclination theta 1 of right hand side of inclination. What will happen when ball start roll down, its speed will be increases, इसका स्पीड बढ़ेगा जैसे नीचे नीचे जाएगा, और लास्ट में आते हैं तो स्पीड इसका क्या होगा, सबसे मैक्सिमम, इट ट्रेवल्स s डिस्टेंस. Now ball start roll up on second inclined plane. इसका भी इंक्लाइनेशन है, इसका दोनों का इंक्लाइनेशन थीटा विल बी इक्वल टू द इंक्लाइनेशन थीटा 1, दोनों का इंक्लाइनेशन बराबर है, एंगल बराबर है. मान लीजिए इसका 45 डिग्री है तो इसका भी 45. व्हाट विल हैपन, नाउ बॉल मूव अपवर्ड विथ when it move upward its velocity will be going to be decreases, और ये भी s डिस्टेंस ट्रेवल करता है यहाँ तक आने में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी h है. ओके, तो यहाँ तक जाता है और ये s डिस्टेंस दूरी तय करता है. नाउ इन सेकेंड केस, अब देखिए सेकेंड केस में देखिए, सपोज इफ वी रिड्यूस द इंक्लाइनेशन ऑफ सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन, अगर हम इंक्लाइनेशन इसका और रिड्यूस कर दें, एंगल इसका 45 से 30 कर दें, तो क्या होगा, बॉल रोल अप एंड बॉल ट्रेवल मोर डिस्टेंस एंड रिच एट हाइट h. यहाँ भी हाइट h तक ही जाना है, ये बॉल तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि h हाइट को पाए ना, लेकिन बट इट ट्रेवल मोर डिस्टेंस, s2 इज मोर देन s से ज़्यादा s2 है. ओके, सो अब थर्ड केस में क्या करते हैं हम, इफ़ वी मेड द इंक्लाइनेशन हॉरिजेंटल, अगर मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन है और इसके एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विल बी ज़ीरो, अगर हम इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ज़ीरो कर दें और ये हॉरिजेंटल बना दें एकदम सीधा, तो क्या होगा, इफ़ थीटा इज़ ज़ीरो, इफ़ थीटा इज़ ज़ीरो एट राइट हैंड साइड, देन व्हाट विल हैपन, दिस बॉल रोल डाउन एंड गो थ्रू दिस वे, ये बॉल इधर मूव करेगा और मूव करता जाएगा जब तक ये चलता रहेगा, इट मूव फॉर एवर, ये कभी रुकेगा ही नहीं, बिकॉज दिस प्लेन इज फ्रिक्शनलेस एंड आइडियल प्लेन, यहाँ फ्रिक्शन कोई नहीं लग रहा है, बॉल के सरफेस और प्लेन के सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है. दैट इज वाई बॉल इज गोइंग ऑन
फॉर एवर, ओके, डू नॉट स्टॉप विथ सेम स्पीड, ओके, जब तक ये चलता रहेगा, जब तक कि ये एच हाइट को ना पावे. सो दिस इज द Galileo experiment, okay, observation of experiment on inclined flame. So from these observations, इस observation से हमको क्या मिलता है? Galileo concluded that an unbalanced external force is required to initiate the motion. एक unbalanced force initiate करने के लिए, if a body is at rest, अगर मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके स्पीड को इनिशिएट करने के लिए ज़रूरत है. बट नॉट अनबैलेंस फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन दिस मोशन. लेकिन वो लगातार अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत नहीं है. द यूनिफॉर्म मोशन, ओके, ऑब्जेक्ट मूव विथ द कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन व्हेन नो फोर्स एक्टेड ऑन देम. सपोज करिए कि एक ट्रेन है, ओके, सपोज अ ट्रेन इज traveling at speed of 10 km per hour and you want to change its speed from 10 to 20 km per hour. So you momentarily use या engine momentarily apply a force to accelerate its motion. मान लीजिए 10 से 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, पर आवर. तो इसके लिए थोड़ा सा उसको फोर्स लगाना पड़ेगा. उसके बाद फोर्स को छोड़ दे, बस लगा करके मोमेंटरी फोर्स और छोड़ देगा, तो जो ट्रेन है वो लगातार चलता रहेगा 20 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्टॉपिंग, ओके. लेकिन आप देखते हैं कि ट्रेन कुछ देर बाद जा करके फिर स्पीड कम हो जाता है, तो इंजन को लगातार चलते रहना चाहिए उसको 20 मेंटेन करने के लिए. बट इफ फ्रिक्शन बिटवीन रेल, पटरी और चक्के के बीच का फ्रिक्शन अगर हम जीरो कर दें तो ये ट्रेन कभी नहीं रुकेगा, लाखों साल तक चलता रह जाएगा. दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ Galileo, okay. There is no extra need of extra unbalanced force to operate या sustain the motion of that train, okay. So on the basis of Newton further study the Galileo idea of force and motion and presented the three fundamental laws known as Newton's law of motion. Galileo के स्टडी से ही मोशन के सारे 3 लॉज, लॉ ऑफ न्यूटन्स या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन निकला, ओके. सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन मोशन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट या ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस some external unbalanced force is applied on the body to change that, okay. ये अब इसको समझिए. there are 3 part of this, there are 3 part of this law. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के 3 पार्ट हैं. फर्स्ट समझिए, अ बॉडी इज एट रेस्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट. एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अपने से चलना स्टार्ट नहीं हो जाएगा जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई करें, ओके. जब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तभी मूव करेगा. जैसे मान लीजिए डस्टर टेबल पर रखा हुआ है तो उसी तरह रहेगा जब तक कि बाहरी अनबैलेंस फोर्स हम ना उस पर पुट करें, ओके. ये उसकी जड़ता है एक तरह से, वो अपने से नहीं चलेगा. नेक्स्ट, अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई टू चेंज इट्स स्पीड. अगर मान लीजिए बॉडी 10 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है तो वो 10 किलोमीटर की स्पीड से ही चलेगा. मानते हैं आपकी 20 किलोमीटर कर दें उसका स्पीड तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, या मान 10 से 5 किलोमीटर कर दें, रिटार्ड कर दें उसके मोशन को तो आपको फोर्स ब्रेक लगाना पड़ेगा, ओके. अपने से वो कुछ नहीं होगा. नेक्स्ट, a body moving along a straight line, suppose a body is moving along a straight line, will continue to move along a straight line, okay, unless an external force applied on the body to change its direction. वो अपने से डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा. जैसे साइकिल सीधे रेखा में जा रहा है तो सीधा चलता रहेगा, वो जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ओके. दिस इज द 3 पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके. इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्ट टू चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन. सभी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन या कह लीजिए अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा,
अगर चल रहा है तो स्पीड उसी चलता रहेगा, अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। वो अपने से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, अपने से वो रेस्ट में है तो मोशन में नहीं जाएगा, अपने में अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है तो उसको ना कम करेगा ना तो ज़्यादा करेगा। ओके, सो दिस इज़ द रजिस्ट, हर केस में वो रजिस्ट करेगा। इसका मतलब है इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट टेन टू रिमेन एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टेन टू कीप ऑन मूविंग, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया, इसी को कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब जड़त्व, जड़ जो अपने से न इधर हो न टस से मस हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज law of inertia. First of law of motion is also known as law of inertia. Okay, this property of an object is called inertia and first law. Okay, inertia is what? So it is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or rest. Okay, this is the inertia. And actually mass of an object is its measure of inertia. Inertia is directly proportional to the mass. If mass is more, then its inertia will be more. अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर मास कम है तो उसकी इनर्शिया कम होगी। सो लार्जर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, लेसर द मास लेसर द इनर्शिया। ओके, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। तो इसका मतलब है, जैसे सपोज ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया देन बाइसिकल, and 5 rupee coin has also more inertia than 1 rupee coin because train has more mass than a bicycle. Similarly 5 rupee coin has more mass than 1 rupee coin. तो इसका मतलब है कि ट्रेन ज़्यादा रजिस्ट करेगा। ट्रेन अगर खड़ा है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जड़ ज़्यादा है, जड़त्व तो ज़्यादा है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये जाकर टच से मस होगा। बट इफ़ यू अप्लाई अ लेसर अमाउंट ऑफ फोर्स, बाइसिकल कैन रन। ओके, बिकॉज इट रजिस्ट लेसर, ये बहुत कम आपका विरोध करेगा, लेकिन ट्रेन बहुत ज़्यादा विरोध करेगा, इनर्शिया ज़्यादा दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ, अब देर आर 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, अब इसको देख लेते हैं हम। Inertia of rest. Okay, if it is an inability of body to change itself from the rest. Okay, when a body is start suddenly, suppose ये inability of body to change itself its state of rest, ये इसमें बॉडी की इनेबिलिटी है कि वो अपने से चेंज नहीं होकर के मोशन में नहीं आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली, एक बस स्टार्ट सडनली, सपोज करिए बस अपने से स्टार्ट हो जाता है, सडनली स्टार्ट होकर के चल देता है, तो क्या होता है? अ पर्सन सिटिंग इनसाइड द बस फॉल बैकवर्ड, जो बस में बैठा रहता है वो पीछे गिर जाता है। इसका मतलब व्हाई अ पर्सन सिटिंग इनसाइड द बस फॉल बैकवर्ड? दिस इज बिकॉज the lower part of the body, his body या person's body start moving with the bus, but the upper part of that passenger will not start. Okay, it is remain in state of rest. upper part जो है वो रेस्ट में ही है, लेकिन lower part बस के साथ स्टार्ट हो जाता है, that is why we fall backward. This is due to the inertia of rest. Okay, similarly अब देखिए when we vigorously shake a branch of tree, some of leaf या fruits may detach from the tree. अगर हम किसी ट्री को थोड़ा सा हिलाएं तो उसके लीव्स या फ्रूट्स गिर जाते हैं। दिस इज ऑल्सो बिकॉज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज द शेकिंग द ब्रांच कम्स इन मोशन बट लीव या फ्रूट टेन टू रिमेन एट रेस्ट। लीव और फ्रूट जो है वो मोशन में नहीं आते, ब्रांच तो मोशन में आ जाता है जैसे शेक करते हैं, दैट इज वाई इट डिटेच फ्रॉम द ब्रांचेस। ओके, नेक्स्ट डे हम लोग और इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।